So welcome to the video. In this video we will discuss about the sixth experiment of BSc fourth semester. So object of this experiment is to determine the pKa value of a phenolphthalein जो कि इंडिकेटर होता है using spectrophotometry. यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के हेल्प से हम phenolphthalein इंडिकेटर का pKa वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. So materials required and reagents required are phenolphthalein solution, देन pH बफर सोल्यूशन जो कि 8 से 12 के रेंज में होना चाहिए उसकी pH वैल्यू, यूएस विज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्वार्ट्ज कवेट्स, पिपिट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, डिस्टिल्ड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर pH एडजस्टमेंट. जहाँ की यदि pH वैल्यू हमारी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे हम उसको मतलब pH को एडजस्ट करने के लिए हम HCl रखते हैं, एसिडिटी को मतलब pH वैल्यू बढ़ाने या घटाने के लिए. Then we will see the theory. Phenolphthalein is a weak acid that exhibits a color change depending on the pH of the solution. जैसे कि एसिडिक फॉर्म में ये कलरलेस होता है, बेसिक फॉर्म में पिंक, एंड द डिसोसिएशन रिएक्शन इज HIND. यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन, देन H प्लस एंड IND माइनस. तो बेसिकली हमारा pH वैल्यू जो हो जाएगा वो pKa प्लस लॉग IND माइनस अपॉन HIND, where HIND is protonated form of indicator and IND minus is a deprotonated form of indicator, and pKa is the pH at which the indicator exists in equal amount of both forms. Now we will see its procedure. In the first step, preparation of buffer solutions take place. Now what happens in the first step? Prepare a buffer solution covering a pH range of 8 to 12, since phenolphthalein changes color in this range. In the next second step, preparation of phenolphthalein solution. Dilute a phenolphthalein in ethanol or water to obtain a measurable absorbance. Then divide into several aliquots and adjust their pH with the prepared buffers. Then in the third step, absorbance measurement takes place. In this, set the spectrophotometer to a appropriate wavelength around 550 nanometer for the pink form of phenolphthalein. Then measure the measure and record the absorbance of each solution at different pH values. In the next step, data analysis occurs. In this, we plot an absorbance versus pH graph, then calculate log IND minus upon HIND using the absorbance values. Then plot pH versus log IND minus HIND to obtain the linear graph. And in the next step, the pK corresponds to the pH at which log IND minus upon HIND is equal to 0, meaning equal concentration of acidic and basic forms. Now we will see its calculations. We use the formula. उससे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक साइड में ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे. तो बेसिकली ये है हमारा एब्जॉर्बेंस टेबल. टेक इट स्क्रीनशॉट और राइट इट. यहाँ पे pH वैल्यू फर्स्ट रो में है. इन द नेक्स्ट एब्जॉर्बेंस है. उसके नेक्स्ट में A माइनस ए एसिडिक अपॉन ए बेसिक माइनस ए, और ये वाला हमारा लॉग IND माइनस अपॉन HIND. तो pH वैल्यू जब हमारी 8.5 होती है तो बेसिकली एब्जॉर्बेंस वैल्यू 0.10 आती है. और सेम वही फार्मूला हम ए की और ए एसिडिक की रख देंगे यहाँ पे. तो ये हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये लॉग 0.022 आया है तो इसकी वैल्यू 1.66. तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है. नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला. IND माइनस अपॉन HIND इक्वल टू होता है A माइनस ए एसिडिक अपॉन ए बेसिक माइनस ए, एज्यूमिंग ए एसिडिक इक्वल टू 0.08 एंड ए बेसिक इक्वल टू 1. एंड जो हमारा ए एसिडिक है वो मिनिमम एब्जॉर्बेंस एट लो pH है, और ये हमारा ए बेसिक जो है जिसकी वैल्यू 1 है ये हमारा मैक्सिमम ऑब्जॉर्बेंस एट हाई pH है. फॉर pH वैल्यू 8.5, यहाँ पे जो हमने टेबल में भी देखा,
तो 8.5 pH के लिए जो हमारा A की वैल्यू होगी वो 0.10 होगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला से देखेंगे IND माइनस अपॉन HIND, इसका जो फॉर्मूला था वो बेसिकली ये था हमारा A माइनस ए एसिडिक अपॉन A बेसिक माइनस A। सो सेम वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे A की वैल्यू 0.10 है तो यहाँ पे हमने 0.10 रख दिया है, और ये 0.08 A एसिडिक की वैल्यू है। देन यहाँ पे 1 माइनस 0.10, सो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.022 आया है। नाउ log IND माइनस अपॉन HIND इक्वल टू log 0.022, जिसकी वैल्यू -1.657 होती है, और 1 - 1.66 अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं। Then similar calculations are prepared for the all pH value and noted in observation table. तो जैसा ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने उतने अलग अलग पीएच पे देखा, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया, जैसे कि पीएच वैल्यू 8.5 होगी तो कैसे कैलकुलेट होगा, वैसे ही हमने अलग अलग पीएच वैल्यू के वहाँ पे कैलकुलेट करके ऑब्जर्वेशन टेबल में रखा है। फ्रॉम द टेबल द क्लोजेस्ट वैल्यूज अराउंड log IND माइनस अपॉन HIND इक्वल टू 0 आर 9.5 pH एंड 9.6 pH। तो 0 के सबसे करीब 9.5 एंड 9.6 pH पे IND माइनस अपॉन HIND की वैल्यू आई है। इसकी वैल्यू -0.08 थी और इसकी वैल्यू 0.11 थी। 9.6 पे 0.11 एंड 9.5 पे -0.8। Since pKa occurs when log IND minus upon HIND is equal to 0, we use a linear interpretation between these values. Now pK is equal to 9.5 plus 0 minus 0.08 upon 0.11 minus 0.08 into 9.6 minus 9.5। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था थियरी में। उसके बाद पी के इक्वल टू 9.5 प्लस, इसी को हमने नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दिया है और इसकी वैल्यू हमारी 9.50 आई है। नाउ ये जो ग्राफ हमने डिटर्मिनेशन ऑफ पीके ऑफ फेनोल्फथलीन, यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जो वाई एक्सिस पे मीन्स ऊपर साइड है, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है। सो यहाँ पे बेसिकली log IND माइनस अपन HIND है, और ये जो है हमारी पीएच की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे पीएच वैल्यू ली है जो 9.5 के आसपास यहाँ पे आया था, और यहाँ पे 0 9.5 कहीं इसके बीच में आएगा यहाँ पे, और ये 9.6 है। तो जो वैल्यू हमारी आ रही थी वो यहाँ पे कुछ 0 पॉइंट कुछ करके माइनस में आ रही थी और यहाँ पे प्लस में आ रही थी, एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा था। तो हम यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो एग्जैक्टली 0 का ये हमारा आएगा वो कहीं यहाँ पे आएगा 9.6 एंड 9.5 के बीच में। सो what the result we got is the experimentally determined pKa of a phenolphthalein is 9.54, which is a consistent with the known value of 9.3 to 9.5, confirming the accuracy of the method. Now we will see the precautions. Use freshly prepared solutions to avoid the contamination. In the second step, means second precautions, calibrate the pH meter before measurements. Handle the spectrophotometer carefully to prevent errors. Use clean cuvettes to avoid observance interference. Avoid exposure to strong light to prevent indicator degradation. And the sixth and last is measure absorbance quickly to minimize changes in solution composition. So this was the sixth experiment of BSc fourth semester. Thank you.